besides that, because Davos this year's theme is about collaboration in the AI age. So I also have to go to a lot of technology sessions and to learn from the very advanced technology. As you may know, because I'm from Hangzhou, where the biggest breakthrough. Yes. DeepSeek was. Yes. You may know the world is more volatile, and there's also a lot of wars around us, and the geopolitical tension is more severe than before, and that's why, and also the climate change, because you walk on the street, you don't see much snow as before. So there's a lot of issues about how can we build collaborations between countries to create more peaceful environment, and how can we use some technologies to tackle the climate change problems. Watch Federal Post. Bold and independent. Assalamu alaikum. This is Hassan Zafar. This is program Talking Politics. I'm joined by Catherine Zhu. She is an Oxford student doing her executive MBA there. She attended the Davos conference, and that's where we got introduced, and I thought it was a very good idea to talk to her. She is from China, living in the United Kingdom these days, and she has experienced the Davos conference. Thank you so much, Catherine, for joining me. Thank you so much for the introduction. Yeah, I had a wonderful time in Davos because this is my first time to come to Davos Congress. And I was there for the side events, but I still have a very great opportunities to network with global leaders, businessmen, and also mindfulness leaders. I spent great time, especially with the Pakistan lunch time, and I have a chance to meet with the finance minister, and also learn about the business atmosphere of the Pakistan. And I was invited to go to a data conference afterwards. Yeah, so I think it's very effective. And besides that, because Davos this year's theme is about collaboration in the AI age. So I also have a chance to go to a lot of technology sessions and to learn from the very advanced technology. As you may know, because I'm from Hangzhou, where the biggest breakthrough. Yes. DeepSeek was. DeepSeek, but DeepSeek is dominating the world news, and you're absolutely right. This time in Davos, the focus was technology and AI and geopolitics compared to if you look at the previous year's Davos conference. It was more about economic development. It was more about human rights and those related subjects. But this year was totally different. And my personal feeling was that all the Europeans that we met there, there was a realization that their place in the world, as it was in the previous decades, last 6-7 decades after the war, the World War, that is crumbling down. Did you have the same feeling when you were talking to them, that they were worried about their place in the world, their economic prosperity was at stake? Feelings like that? Yeah, I think this year seems different compared with the last few years, because as you may know, the world is more volatile, and there's also a lot of wars around us, and the geopolitical tension is more severe than before, and that's why, and also the climate change, because you walk on the street, you don't see much snow as before. So there's a lot of issues about how can we build collaborations between countries to create more peaceful environment,
and how can we use some technologies to tackle the climate change problems. Yeah, and also I figured out there's a very interesting thing this year. It's about the mindfulness leadership, because I think during the main congress in the morning, there was a Buddhist monk to give the leaders the wisdom of the Buddhism. Like it's more about philosophy and how do they learn from this like Buddhist wisdom about the harmony, collaboration, and to create the world of peace in the future. So I find it's quite interesting. And personally, I have attended a lot of mindfulness leadership sessions around these topics. Yeah. So भारत ने जब देखा कि शिकस्त हो गई रूस को अफगानिस्तान के अंदर, तो उसने जल्दी से सहारा अमेरिका का लेना शुरू किया। लेकिन अमेरिका के अंदर भी हॉक्स और डव्स मौजूद हैं और उनकी ये अप्रोच थी हॉक्स की कि जनाब जो भारत है वो मौका परस्त है और वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमारा दोस्त बन रहा है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि वो लेकिन उससे पहले कॉन्डोलीजा राइस जो कि उनकी खारजा अमूर की वजीर रही और इसी तरीके से फिर हिलरी क्लिंटन आई, दोनों ने ये कहा कि भारत हमारा नेचुरल एलाई। लेकिन इस सब से मुबर्रा असल मसला यह है कि क्या दुनिया ना इंसाफी की बुनियाद के ऊपर और रेटरिक्स के ऊपर जो है वो चलती है? जवाब तो नफी के अंदर है, ऐसा तो नहीं है ख्वाहिशात के ऊपर। क्या ट्रंप ही नहीं थे जिन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला की पॉलिसी बनाई? क्या ट्रंप वो शख्स नहीं थे जिन्होंने जाके किम जोंग उन से जो है नॉर्थ कोरिया के जो है वो बॉर्डर के ऊपर मुलाकात भी कर ली और जो है वो मुलाकात बाकायदा अपनी ख्वाहिश पर? उसके बाद क्या वही डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे जिन्होंने पॉलिसी ऑफ रिट्रीट को जो है सीरिया के अंदर अपनाया और रशियन जहाजों के मुकाबले में वहां से फिर अपनी एयरफोर्स को चलता बनाया? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अब बात कर रहे हैं वो असल में तमाम का तमाम फोकस जो है, पहली बात है गीदड़ भक्तियों के ऊपर है, दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो जी लगाएं और इस बहाने कोई अमेरिका को पैसे मिलना शुरू कर दें। रूसी सदर पुतिन का जो है रियाद में आना, अपने सखुई जहाजों के मौजूदगी में अपने एस्कॉर्ट लेके वो अपनी एयरफोर्स का वहां लैंड करते हैं, इज दिस नॉर्मल? ये दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। जो कल के दोस्त थे वो आज के दुश्मन होंगे और जो आज के दोस्त हैं वो कल के दुश्मन ठहरेंगे। भारत में ये डिबेट है कि हम इसका हासिल क्या करेंगे और फिर उसके बाद देखिए पूरी दुनिया को भी, अंधे को भी पता है कि इस टाइम पे अमेरिका की ये मेहरबानियां चीन को न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद अमेरिका को ये रियलाइज हो जाएगा कि चीन एक हकीकत है जिसको आप जो है साउथ चाइना सी के अंदर भी काउंटर नहीं कर। अमेरिका अपना असला, अपना माल, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनको बेचना चाहता है और वो ये चाहता है कि किसी सूरत उनको चार पैसे मिल जाएं। इसके अलावा अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हुआ। हमने तो अमेरिका की दोस्ती निभा के खूब मजा चखा है। अब भारत की बारी है, जरा थोड़ा सा तुम भी मजा चख लो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका लामिया देखेंगे। बाकी अहम बातों में कम्पैक्ट का एक इनिशिएटिव लिया गया है। कम्पैक्ट बोले तो कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड एंड टेक्नोलॉजी। क्या इम्पैक्ट होगा इस कम्पैक्ट का? और दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में कई अहम इश्यूज आए, जिनमें एक ताहूर हुसैन राना साहब की हवालगी भी भारत के हवाले से करने का ट्रंप ने ये ऐलान किया। इसके साथ साथ दोनों जो रहनुमा हैं, पहले भी ट्रंप के पहले दौर में भी हाउडी मूडी रैली हो टेक्सास में 2019 की या 2020 फरवरी अहमदाबाद गुजरात में नमस्ते ट्रंप हो, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं। दोनों ही अपने मखसूस तरह के वोट बैंक को भड़का कर जो है वो आते हैं। ये क्या इम्पैक्ट करेगा खित्ते में? आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान चेयरमैन है। इसके साथ साथ ये खारजा अमूर, फॉरेन अफेयर्स, IR पर भी बहुत गहरी गिरफ्त रखते हैं। वेलकम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, मैं खैरियत से हूं जी। अब्दुल्ला साहब, कैसे देखते हैं आप ये मोदी के दौरे अमेरिका को और ट्रंप के साथ बातचीत, फिर जिस तरह मुश्तरका एलामिया आया, क्योंकि इनका पूरा एक बैकग्राउंड भी है 2016 से 20 तक ना ट्रंप का, जिस आप
आप इस हालिया पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, आपने बड़ा अच्छा बता दिया, हाउडी मोदी का भी बता दिया, लेकिन उस ज़माने में आपको याद है कि पाकिस्तान के भी वज़ीर आज़म ने जाके वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया था और उनको भी अच्छा वेलकम दिया गया था। इसलिए एक बात तो तय है कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया थी माज़ी की या मौजूदा, या वो आपको जो बाइडेन मिलें या फिर आपको जो है वो बराक ओबामा मिलें, हर ने भारत की तरफ झुकाव रखा। और बाइडेन इंतज़ामिया में तो आपको मालूम है कि वो दौर था जब ऋषि सुनक जो हैं वो वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। और साथ ही साथ जो है वो भारतीय निजात कमला हैरिस जो थी, कमला देवी हैरिस ये उनका पूरा नाम है, तो वो भी आपको पता है नायब सदर अमेरिका की, और वो तो सदर बनने के लिए तैयार बैठी थी और वो बड़ा उन्होंने कंटेस्ट किया। अच्छा, लेकिन इस सब में भारत के जो लॉबिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और बिलखसूस जो उनके नीचे स्टाफ जॉब करने वाले, अक्सर जो सेनेटर और कांग्रेसमैन के साथ जो स्टाफ जॉब जिनको स्टाफर्स कहा जाता है, वो तमाम के तमाम जो हैं मोस्टली उनमें 90% जो है वो भारतीय निजात लोग हैं। और आपको ये भी याद है कि बाइडेन के जब हुकूमत आई तो उस टाइम पे कोई 39 की पोस्ट जो थी, और इंक्लूडिंग व्हाइट हाउस के अंदर भी, वो भारतीय लोगों की थी। तो एक दफा जो फिर भारत जो है वो अपना असर और रसूख दिखा रहा है। भारत से भी 25 लाख लोग हर साल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। हम 8 लाख की बात करते हैं तो जाहिर है वहाँ फिर बड़ा मुल्क है, वहाँ 25 लाख लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। और फिर ये बात बड़ा ज़रूरी है उमर साहब जानना कि इसके अंदर आप देख लें कि मुसलमानों के मुल्क तो सारे ही मुल्क जो है वो मुसलमानों के हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो हम उनको अपना ही कहते हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये हमारे लीडर्स एक हैं, जबकि आपको यूरोप में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएं, हालांकि वो एक हमारे मेरे ख्याल में जिले से भी छोटा मुल्क होता है, लेकिन वहाँ लीडर तब्दील हो जाते हैं, हीरोज तब्दील हो जाते हैं। तो भारत के पास जो है कोई और मुल्क नहीं है, एक इंडिया के अलावा उनके पास कोई मुल्क नहीं है। इसलिए हिंदुओं के पास और यहूदियों के पास एक इसराइल और इनके पास एक इंडिया है। इसलिए जो मैं समझता हूं कि ये एक गैर फितरी अलायंस है। उसकी वजह यह है कि इसमें भारत में भी बड़ी ले दे है इस पे। आपको मालूम है कि वो शुरू से एक प्रो सोवियत यूनियन और फिर प्रो रशिया जो है पॉलिसी उसको जो है वो अपनाए रखा, और आज भी उनके जो बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं वहाँ डिप्लोमेसी के अंदर जरूरत है कि आप जो है वो रशियन जबान सीखें, ये उनका ऑफिशियल एक स्टांस मौजूद है। तो इसको आप एक रात के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। अब भारत ने जब देखा कि शिकस्त हो गई रूस को अफगानिस्तान के अंदर, तो उसने जल्दी से सहारा अमेरिका का लेना शुरू किया। लेकिन अमेरिका के अंदर भी हॉक्स और डव्स मौजूद हैं, और उनकी ये अप्रोच थी हॉक्स की कि जनाब जो भारत है वो मौका परस्त है और वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमारा दोस्त बन रहा है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि वो लेकिन उससे पहले कॉन्डोलीजा राइस जो कि उनकी खारजा अमूर की वजीर रही, और इसी तरीके से फिर हिलरी क्लिंटन आई, दोनों ने ये कहा कि भारत हमारा नेचुरल एलाई है। और इससे बहुत पहले की अगर बात पे पीछे चले जाएं तो टाइम मैगजीन के अंदर एक बहुत बड़ा कोई 16 पेज का आर्टिकल छपा था, ग्लोबल पुलिसमैन। और वो ग्लोबल पुलिसमैन जो का किरदार, ये 1990 की वस्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा हुआ है। उसमें उसने भारत को इस इलाके का ऑस्ट्रेलिया से लेके इस खित्ते के अंदर जो है गल्फ तक उसको थानेदार बनाया हुआ था। भारत को ये कहीं ख्वाब है, ज़ौम है, इसी की बुनियाद के ऊपर भारत अपनी मिलिट्री की जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खरीदारी है। You know, I think it has been for quite a while. I remember when the first round of Donald Trump, 2016 to 20, where he explicitly talked to the NATO members in one of the meetings. They have to raise their commitment. So we were talking about 2% of the GDP of the countries. And he said, you have to meet that, because otherwise, why should America bring all the burdens if you are lower than dominant role or an important
important role on the Euro-Asian continent. And therefore, they could not dominate Europe after World War II. So therefore, because the Americans, they gave the guarantees, and therefore they said, okay, maybe it is a long strategy. We will see how this will be playing out. And if this is really the fundamental issue, that there will be more a lineage between Russia and the European continent, I don't know, because at the moment things are really fragmented. This is now the discussion inside, because the people, and that is a sensitive feeling in Germany, that unfortunately people from other cultures, they are committing crimes in Germany, and it is seen that they are not, let's say, illegally in our country, and that is the discussion what takes place. Watch Federal Post. Bold and independent. Hello, good evening, and welcome to Talking Politics. I'm joined by Peter Bestnitz. Thank you very much for joining me. Peter is currently based in Switzerland, and let me share with you what he has been doing in the past. He has served the German military for over 40 years. He visited Afghanistan in 2006 and Islamabad in 2005 after the devastating earthquake. Although he is not actively mandated in either German or Swiss politics, Peter is closely following the events on geopolitical scale. He is focusing his interest on security and defense, as well as the emerging technologies that are already affecting economies and social life in our societies. So thank you very much, and I would welcome you to Talking Politics, Peter. Very interesting times as we are talking today. Elections took place in Germany just yesterday, and there are talks about the coalition government and which way will it go. Friedrich Merz, he is the leader of the alliance, that is CDU, Christian Democratic Union, and CSU, Christian Social Union, and their rival party, if you like to call them, their rivals in politics at the moment, AfD, Alternative for Germany. So that is the situation. My question is, how has J.D. Vance's speech on 14 February at the Munich Security Conference and the recent developments, other recent developments, the potential peace talks in Riyadh, how have these developments on the global scale affected, or in Europe, the way situation is developing? How has that affected the outcome of the German elections now? Well, first of all, let me thank you very much to have the opportunity to have this discussion, and that you show interest in another part of the world, mainly Europe, and especially you mentioned the election. We will come back to that. But to give you an answer on what happened after J.D. Vance, the vice president, gave a speech in Munich, this was reflected later as a bombshell. And a lot of people, they were irritated about his words because he didn't focus on the security situation in Europe, mainly Ukraine and what happened there. No, he focused his speech on the attitude and the way in Europe things are handled, like the freedom of speech. By the way, it's not the freedom of opinion. So that was then interpreted as, well, kind of a rude statement by the new vice president. But anyway, I think it was a wake-up call in order really to go into that. And recently I saw, just the other day after that, I saw an interview with him at the CPAC, that is a big event in the US, where he was asked again. And he again makes the point saying that these are fundamental principles, freedom of speech. And if this is not guaranteed, he says, America will not be with you. So that causes a lot of, stunning and even sometimes anger, because then they have to find a way. अब इस दौराहे पे जिस पे आज हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारी
कनेक्टिविटी जो है या हमारी इम्पोर्टेंस या हमारी रेलेवेंस मेरी नज़र में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से किसी जगह पे खड़ी नजर नहीं आ रही। वी आर नॉट स्टैंडिंग एट एनी प्लेस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। किसी चीज में हमारी रेलेवेंस बने, अगर इस वक्त हमारी कोई रेलेवेंस है, वो अमेरिका हमको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए कि पाकिस्तान के चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज वो ताल्लुकात कहाँ हैं, आज वो सी पैक कहाँ है, वो किधर गुम हो गया, कौन से पहाड़ के पीछे चला गया, किस दरिया सिंध में गर्क हो गया, कहाँ चला गया वो सी पैक, जिसको यही हुकूमत जो अभी पावर में गेम चेंजर कहती थी और पता नहीं क्या कहती थी, उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ चले गए, गवादर एयरपोर्ट, गवादर की बंदरगाह कहाँ चली गई, उसके ऊपर कितने जहाज आए या कितने जहाज आने हैं, कितने लोग हम पे एतमाद करते हैं। तो वो तमाम चीजें आप देख लीजिए और उनको बड़ा पॉलिटिकल बायसेस से बाहर निकल के एनालाइज कर लीजिए। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जब आप किसी चीज को हक के तौर पर, सच्चाई के तौर पर कहना शुरू करते हैं, आपके ऊपर लेबल लगाया जाता है कि आप तो एंटी गवर्नमेंट है या आप तो फलानी पार्टी के मेंबर है। चीजें इस तरह नहीं चलती। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ है फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब एंड वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। ये सिचुएशन आपके सामने रखते हैं जो इस वक्त यूरोप में डेवलप हुई है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। सबसे पहले तो ट्रम्प साहब ने उनसे फरमाइश की कि ये यूक्रेन वॉर का खर्चा आप खुद उठाइए, अपना डिफेंस बजट 2% से लेके 5% पे ले जाएं। अब ये ओवरनाइट करना उनके लिए मुश्किल था। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने वहां पे आके तकरीर की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दिया उन्हें डेमोक्रेसी पे, यूरोपियंस को फ्री स्पीच पे, उनको क्रिटिसाइज किया कि आपके यहाँ ये नहीं है। ये सारी डेवलपमेंट्स। और अब मोर रिसेंटली अभी 2 दिन पहले 23 फरवरी को इलेक्शंस हुए जर्मनी में। फार राइट वहां पे आके उनकी फतह हुई। दे आर मेकिंग द गवर्नमेंट देयर। ये सारी डेवलपमेंट्स में जहां पे अब हमें नेटो का मुस्तकबिल भी बहुत वीक नजर आ रहा है एंड यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ इज सीम्स टू बी फॉलोइंग अपार्ट। बल्गारिया में मुजाहरे हुए कि हमने यूरो करेंसी नहीं अपनानी। ये सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, इसमें कहीं पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि कोई इनरोड्स हैं और कितना पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है टू डील एंड कोप विद दिस चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो? बहुत बहुत शुक्रिया हसन जफर साहब। पाकिस्तान, पहली बात तो ये है कि हमने पाकिस्तान की पोजीशन को जानने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसको बैनुल अक़वामी सियासत कहते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की रेलेवेंस देखनी पड़ेगी कि कितना रेलेवेंट हम हैं उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। और जब अब हम उस रेलेवेंस को देखते हैं तो वो एक तो रीजनल कनेक्टिविटी को आपको देखना पड़ेगा, दूसरा जो बड़ी पावर सेंटर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और उन पावर सेंटर से या उन पावरफुल ममालिक से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को देखना पड़ेगा। फिर हम उन ममालिक के लिए क्या करते हैं, या वो ममालिक, वो बड़े बड़े मुल्क, वो तो हमारे लिए, हम तो क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और क्या चीज़ है जो हमें सूदमंद है, और क्या फायदा है जो वो हमसे उठाना चाहते हैं। अब इन तमाम बैकग्राउंड में आप देखते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले दिनों पाकिस्तान के G+ स्टेटस के हिसाब से बहुत सारी खबरें आई, और उसकी रेलेवेंस, उसकी वजह क्या बन रही थी वो भी आपको पता है। IMF का वफ्द तो भी आया था पाकिस्तान में, और वो क्या कर रहा था, और वो किस तरह हमारे यहाँ गवर्नर्स की सूरत हाल को और डिफरेंट चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा था, वो भी आपको पता है। अब इस दौराहे पे जिस पे आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी जो है या हमारी इम्पोर्टेंस या हमारी रेलेवेंस मेरी नज़र में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से किसी जगह पे खड़ी नज़र नहीं आ रही। वी आर नॉट स्टैंडिंग एट एनी प्लेस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी अमेरिका में इलेक्शन हुए, ट्रंप ने किन किन को बुलाया या किन से बातचीत हुई वो आपको पता है।
पाकिस्तान के हवाले से क्या बातचीत हो रही है वो भी आपको पता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ हमारे ऊपर क्या बात हो रही है ये भी आपको पता है। यूक्रेन या रशिया की वॉर के हवाले से हमें ये कहा जाता रहा अमेरिका की तरफ से कि जी हम आपके इमरान खान साहब वो गए थे हुकूमत रूस गए थे तो रूस ने हमला कर दिया था। उसका मतलब ये अमेरिका ने लिया कि पाकिस्तान शायद उस हमले के अंदर रूस के साथ शामिल था, हालांकि ऐसी बात थी नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज को परसीव किया इस तरफ और उसी चीज को वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसी चीज पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात रखे और जाते जाते जिस तरह उन्होंने हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर कदगन आयद की और हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जिस तरह उन्होंने वो किया वो भी आपको पता है। तो मेरा ख्याल ये जो दुनिया में जो तब्दीलियां हो रही हैं, अगर हम अपने लेवल को उठा के उस लेवल पे लेके आए जो दुनिया का लेवल है, फिर तो शायद मेरी नजर में किसी चीज में हमारी रेलेवेंस बने। अगर इस वक्त हमारी कोई रेलेवेंस है वो अमेरिका हमको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए कि पाकिस्तान के चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज वो ताल्लुकात कहाँ हैं? आज वो सी पैक कहाँ है? वो किधर गुम हो गया? कौन से पहाड़ के पीछे चला गया? किस दरिया सिंध में गर्क हो गया? कहाँ चला गया वो सी पैक जिसको यही हुकूमत जो अभी पावर में मन गेम चेंजर कहती थी और पता नहीं क्या कहती थी, उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ चले गए? गवादर एयरपोर्ट, गवादर की बंदरगाह कहाँ चली गई? उसके ऊपर कितने जहाज आए या कितने जहाज आने हैं? कितने लोग हम पे एतमाद करते हैं? तो वो तमाम चीजें आप देख लीजिए और उनको बड़ा पॉलिटिकल बायसेस से बाहर निकल के एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जब आप किसी चीज को हक के तौर पर, सच्चाई के तौर पे कहना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर लेबल लगाया जाता है कि आप तो एंटी गवर्नमेंट है या आप तो फलानी पार्टी के मेंबर है। चीजें इस तरह नहीं चलती। चीजें आपको जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, बाकियों का जो हाल है वो आपको पता ही है। तो अभी हमारे यहाँ वो जनाब इसहाक डार साहब पिछले दिनों अमेरिका तशरीफ ले गए तो वहाँ एक दहशतगर्दी के ऊपर वो तकरीर फरमा रहे थे और उस तकरीर में वो ये पाकिस्तान के नैरेटिव को पेश करें कि जी हम कितना सफर कर रहे हैं दहशतगर्दी की वजह से। वहां वो वहां भी सियासत खेल रहे थे कि जी हमने तो कंट्रोल कर लिया था, तो बाद में ये दुनिया नहीं सुनना चाहती यार। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर इतनी कुर्बानियां ये सारी सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम लेकिन दुनिया हमारा नैरेटिव क्यों नहीं मान रही है? क्यों नहीं मान रही है दुनिया में? ये सोचने की बात नहीं है, इसलिए कि ना अहल अनविजनरी किस्म की कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं कि वी आर नॉट विद एनी साइड, वी आर आवरसेल्व्स अ साइड। दैट मींस हम चार पिलर्स देखते हैं वर्ल्ड के, चार पोल्स देखते हैं। वन इज रशिया, वन इज चाइना, वन इज अमेरिका एंड वन इज इंडिया। तो ये एंगल भी है, लेकिन सीधे सीधे वी आर नॉट न्यूट्रल। वी आर हम चाइना हमारा एक एनिमी है, ये बात सबके सामने है। अमेरिका का भी एनिमी है। ट्रंप ने अभी हाल में जो बातचीत की है इंडिया के लिए, एक चीज जो हमारा कंसर्न था बांग्लादेश, तो ट्रंप ने सीधे सीधे बोला कि बांग्लादेश मैंने मोदी के हवाले किया। नहीं, ट्रंप की जो इश्यूज हैं, एक तो हम ब्रिक्स में हैं, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इन दोनों में हम अमेरिका की मर्जी के बिना हैं? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है। सर प्रिंसिपली तो ये दोनों तंजीमें अमेरिका के हसास से बाहर निकलने के लिए ना, प्रिंसिपली। बिल्कुल सही। अगर आप ब्रिक्स को देखें तो जितने इंडेक्सेस अभी मोर रिसेंटली हुए, सारे के सारे प्रो अमेरिका कंट्रीज उसमें घुसे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी अमेरिका होती थी वो प्रो अमेरिका बन रही है, इसमें किसका फायदा है? यानी आपके ख्याल से इंडिया फिर सक्सेसफुली इस अपनी चीज को कंटिन्यू रखेगा जो हमें नजर आई कोल्ड वॉर के दौर में भी, कोल्ड वॉर के बाद भी, पोस्ट सोवियत यूनियन जो रहा उसमें भी, कि अपने इंटरेस्ट के तहत जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बनो। आपके ख्याल से ये चीज कंटिन्यू करती रहेगी? दैट वाज नॉन अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के टाइम में नॉन अलाइन थे। आजादी के बाद इंडिया ने नॉन अलाइंड खारजा पॉलिसी अपनाई। नेहरू ना मुकम्मल तौर पर अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बने, ना मुकम्मल तौर पर सोवियत ब्लॉक का। 1962 की वॉर में अमेरिका ने चाइना के खिलाफ, चाइना इंडिया की वॉर में किसी हद तक अमेरिका ने सपोर्ट दी इंडिया को। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने बाकायदा सोवियत यूनियन के साथ मुआहदे भी किए, अकॉर्ड्स भी किए। 1990s के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद काफी हद तक इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई, गुर्बत आई। 2000 में उस वक्त के अमेरिकी सदर क्लिंटन ने इंडिया का भरपूर दौरा किया। उसके बाद 2005 में जॉर्ज बुश
और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दरमियान इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। उसके बाद से चाहे बाराक ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे जो बाइडेन हो, ये ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे इंडिया और अमेरिका के। अब ट्रंप दोबारा एक मर्तबा अमेरिका के सदर हैं, मोदी की मुलाकात भी हो चुकी है ट्रंप से। 2-3 इश्यूज हैं जो जिस तरह टैरिफ की बात की जा रही है, एक इशू है ब्रिक्स के हवाले से जो है वो अमेरिका को कुछ कंसर्न्स हैं, या उसके बाद जो इंडिया में जो लीगल इमिग्रेंट्स नहीं थे वो जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, इस तरह कुछ मामलात हैं। तो आज हमारे साथ फॉर्चुनेटली इंडिया से ही मौजूद हैं रोहित शर्मा साहब, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। वेलकम रोहित शर्मा साहब, रियलिटी बाइट्स में बहुत खुशामदीद आपको। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आप लोगों के शोज देखता हूँ, बहुत अच्छे शोज बनाते हैं आप। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। बहुत शुक्रिया रोहित साहब। रोहित शर्मा साहब बताइएगा, अपना एक्सपर्टीज दीजिएगा, ट्रंप के दौर में कैसे रहेंगे इंडिया के साथ ताल्लुकात? जो ये टैरिफ का मसला एक फंसा हुआ है, आप भी जानते हैं कि ट्रंप कहता है जी कि टैरिफ बहुत ज्यादा आप लगाते हैं अमेरिकन गुड्स पर, इसको और प्लस ये जो ब्रिक्स पर कंसर्न है अमेरिका के, कैसे देखते हैं अमूमी तौर पर ट्रंप के दौर में इंडिया यूएस ताल्लुकात? देखिए, ट्रंप सेकंड टर्म में आए हैं। ट्रंप को ये पता है कि मेरे पास एक थर्ड टर्म नहीं है, तो वो इस बार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि हमने पहले नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चाइना है। ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, ठीक है, सब पर लगाए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। वो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी लगाए, कुछ दिखाने के लिए लगाए, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया। ये सारी चीजें उनके इलेक्शन प्रॉमिसेस थी और उनसे उनकी पार्टी की और कंट्री की उम्मीदें थी। जहां तक बात ये कि इंडिया से क्या रिलेशंस हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अभी मिलके ही वापस लौटे हैं वहां से, और वहां पर जब थे तो दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, दोनों की बड़ी अच्छी जान पहचान रही। मतलब इन द सेंस के पहले से ही दोस्ती थी, पहले से ही जान पहचान थी, लेकिन दोनों की बड़ी अच्छी हम लोग केमिस्ट्री देख पाए। इस केमिस्ट्री में एक चीज तो ट्रंप ने बता दी कि हम इंडिया के साथ हैं, और इंडिया ने भी एक चीज बहुत क्लियर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद बोला कि हम नॉन अलाइंड, जिसका जिक्र आपने पहले किया, प्राइम मिनिस्टर ने उस नॉन अलाइंड को बिल्कुल साइड किया और बोला कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस के साथ हैं, हम पीस के साथ हैं। ये इंडिया का स्टैंड आज से नहीं है, 80 साल से पीस के साथ है, ठीक है। व्हाट इज न्यू इन द स्टेटमेंट? हम न्यूट्रल नहीं हैं। हम न्यूट्रल नहीं हैं तो किसके साथ है? हम जिसके सामने बैठ के बोल रहे हो उसके साथ है, सिंपल। तो ये अब एक और एंगल भी है इसमें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं कि वी आर नॉट विद एनी साइड, वी आर आवरसेल्व्स अ साइड। दैट मींस हम 4 पिलर्स देखते हैं वर्ल्ड के, 4 पोल्स देखते हैं। वन इज रशिया, वन इज चाइना, वन इज अमेरिका एंड वन इज इंडिया। तो ये एंगल भी है, लेकिन सीधे सीधे वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर हम क्वाड हमारा एक एनिमी है, ये बात सबके सामने है। अमेरिका का भी एनिमी है, I2U2 और क्वाड को दोबारा जिसे बोलते हैं, दोबारा स्टार्ट मतलब स्टार्ट तो था ही, बाइडेन टेन्योर में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी दोनों की, तो उस पे दोबारा हम लोगों का फोकस जाएगा। ट्रंप ने अभी हाल में जो बातचीत की है इंडिया के लिए, एक चीज जो हमारा कंसर्न था बांग्लादेश, तो ट्रंप ने सीधे बोला कि बांग्लादेश मैंने मोदी के हवाले किया, राइट। तो ये समझने की बात है कि जिस तरीके से वो ट्रंप बात कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू वू इंडिया। All holding agencies, law enforcing agencies, all were misused by Sheikh Hasina during her authoritarian and dictatorship in the guise of democracy. And you know that popularly Sheikh Hasina is known here now in Bangladesh as a fascist ruler. So people were actually rising with the feelings of patriotism. People wanted justice. So it's not nationalism in that sense. People were actually wanted justice to establish their rights. So that was the real scenario, and Bangladesh witnessed that type of development, not nationalism like Hinduism in India. It's not like that in Bangladesh. No need to feedback that now right-wing will be backtrack to the same feelings as Hasina did forcefully. So there is no need there. Just normal
normal judicial process, normal investigation will reveal many things, and Hasina as well as the top leaders of our be guilty, and they will face trial and punishment, I think. Watch Federal Post. Bold and independent. Assalamu alaikum, मैं हूं हसन जफर, ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स. We have Kamaruzzaman Bablu Sahab from Bangladesh with us. Welcome, Bablu Sahab, to Talking Politics. Thank you very much for having me. Sir, it's my pleasure. I'm sure you're watching the world developments in the past couple of weeks, especially last 2 days after the German elections, where this rise of nationalism in Europe is on the horizon. So I was thinking, before having this conversation with you, that I think it's a very good opportunity to discuss Bangladeshi nationalism that has come up in the previous month, especially after the toppling down of Hasina Wajid's regime in August 2024. How do you see these developments in relation to what has happened or the way things are in our region in South Asia? The rise of Bangladeshi nationalism, rise of Hindu nationalism in India, and several things. So is this a kind of a wave across the world? The world has changed. The way we have known it, it does not exist anymore. Is it like that? Thank you very much for this interesting question. Actually, I humbly want to differ a little bit. Actually, in Bangladesh, that has happened in the last couple of weeks. It's not only nationalism. Actually, in the last 15 years, during the regime of Sheikh Hasina, people were hugely suffering for injustice and human rights violation. So people were actually so much hunger for justice, for human rights. That's why there was an uprising, and the student started this uprising with a very minor issue, quota reform movement that was started, but gradually it turned into a massive movement. Actually, people were ready to topple Sheikh Hasina, but you know that all holding agencies, law enforcement agencies, all were misused by Sheikh Hasina during her authoritarian and dictatorship in the guise of democracy. And you know that popularly, Sheikh Hasina is known here now in Bangladesh as a fascist ruler. So people were actually rising with the feelings of patriotism. People wanted justice. So it's not nationalism in that sense. People were actually wanted justice to establish their rights. So that was the real scenario. And Bangladesh witnessed that type of development, not nationalism like Hinduism in India. It's not like that in Bangladesh. That is where I want to draw the line in order to understand how the uprising in Bangladesh is different from whatever the situation is in India right now, and as it is developing elsewhere, especially Europe. Patriotism, discontent with the previous regime, desire for justice, human rights, all uprisings, all forms of nationalism, these are the driving forces behind all kind of nationalism. You talk to any German, you talk to any European, Ukrainian, for example, or even Russian, discontent, dissatisfaction, patriotism, these are at the bottom of all nationalism. So how do you think Bangladeshi nationalism is different from the rest of the world? Of course, I think so. It's totally different because the source of the rising here was deprivation. People were deprived. People were mistreated inhumanly, because there are dozens of incidents in this country during the regime of Sheikh Hasina that
just a college student or a university student, very young student. He was detained by law enforcement agency members. And when the family went to the nearest police station, मैं असल में इसमें जो चीज है ना, आना जाना सारा कुछ था, लेकिन जब टेररिज्म हुई है ना 1980s में और 90s तक होते हुए माहौल खराब होता गया और फिर ये हुआ 26 नवंबर 2008, तो फिर इंडिया की तरफ से बिल्कुल ही लोगों को ना वीजा देना ना कुछ ऐसे हुआ है। उससे पहले 65 वॉर में एक फिर दौर आया था कि आना जाना मुश्किल हो गया, लेकिन बाद में ये रिलैक्स भी होना शुरू हो गया, क्योंकि ये बॉर्डर है तो आर्टिफिशियल ना, सियासी है, लोगों का तो आना जाना रिश्तेदारियां ताल्लुक हैं। लेकिन वो जब टेररिज्म हुई और वो पाकिस्तान से लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद और इस किस्म की, पहले कश्मीर में फिर इंडिया में, उसके बाद फिर कोई फोन भी करे तो वहाँ पे मुसलमान डर जाते हैं। ये ऐसे ये बैकग्राउंड। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा that is the real tragedy of India. That's the real tragedy of India. ये हमने तो खैर हमारा तो यहाँ पे ही मैं पैदा हुआ, यही मैं पला बड़ा, और आई स्टिल रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड डेज इस तरह की कोई फीलिंग ही नहीं। ये हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग हमारे स्कूल में, कॉलेज में, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं। और हम उनके त्योहार में जाएं, वो हमारे त्योहार में आए, और मतलब वी यूज्ड टू सेलिब्रेट टुगेदर एंड वी यूज्ड टू रियली लिव टुगेदर। वो एग्जिस्ट वेरी पीसफुली। ये सब चीजें जो एज आई टोल्ड यू कि इट ऑल चेंज्ड यू नो with this Ram Janmabhoomi movement. तक़सीम हिंद 1947, The Bloody Partition of Punjab, तनाज़ कश्मीर 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड लीडिंग वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। हमारे साथ होते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आज हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं हसनैन नकवी साहब, सेंट ज़ेवियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके ज्वाइन करने के लिए। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, डॉक्टर हसन जफर साहब कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया, मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं जो अपने ओपिनियंस हैं वो आपके साथ और यहाँ पे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकूं। और डॉक्टर साहब ने मुझसे यही कहा था कि मैंने जब उनसे पूछा कि भाई टॉपिक क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि इंडो पाक डायलॉग। दूसरा सवाल मेरा ये था कि व्हाट विल बी द लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेट इट बी अ फ्री विलिंग थिंग, यू कैन स्पीक बोथ हिंदुस्तानी एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश। तो आई थिंक हम लोग विल कीप अप टू दैट। तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो हिंदुस्तानी, मतलब मिक्सचर ऑफ उर्दू एंड हिंदी, नॉर्मली डू इन आवर डेली लाइव्स। यस जी जी। तो कनेक्शन आपका नकवी साहब और डॉक्टर साहब, आपका कनेक्शन है हिस्ट्री का सब्जेक्ट जी। that binds us together and not just that, बड़े मोहतरम हैं डॉक्टर साहब और फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैं इनको फॉलो भी करता हूँ। इत्तेफाक नहीं हुआ इनसे मुलाकात का जब ये इंडिया आए थे। उस बहुत मेरे ख्याल में उनकी अपनी मसरूफियात इतनी थी कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि वो बॉम्बे भी आए थे, मुंबई आए थे, बट इट सो हैपेंड दैट वी कुडंट मीट, बट वी आर इन टच। We are in touch on Messenger, we are on touch on WhatsApp.
और then suddenly just a few days ago I got this invite from Dr. Sahab, and I couldn't resist. So without even thinking twice, I said yes, I will be there. Very kind of you, sir. Very kind of you. तो फिर ये डॉक्टर जरा बताएं, मैं क्यूरियस था जी हसनैन भाई कि आपके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हैं कि सभी हिंदुस्तान में है? जी नहीं, हमारे 90% रिश्तेदार तो पाकिस्तान में ही हैं। यही मैं सोच रहा था। जी 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 90%। इनफैक्ट हमारे फादर के साइड से अ, अ, उनके उनके 4 ब्रदर, उनकी वालदा, they all migrated in the early 1950s when my father was I think hardly 15-16 years ago, 15-16 years old. Or after that, my father could not see his mother. He could not meet his brothers in his lifetime. Or my father was left with his eldest sister here. चाइनीज का आप मुझे बताएं क्या स्कोप है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे बच्चों के लिए? चाइनीज का जो स्कोप है आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे अभी तक लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि अब पाकिस्तान का ऊपर आना चाइना का बगैर नामुमकिन है। हमारी हुकूमत क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है? चाइना में बहुत से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो चाइना जा भी चुके। इसमें लैंग्वेज तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, अगर आप जितना भी सीखे उतना कम है। लेवल 1 और लेवल 2 ये हमारे पास बेसिक लेवल होता है, जो हम जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसको पढ़ाया जाता है। बेसिक लेवल को हमने खुद कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। अगर जो स्टूडेंट जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हम उसको एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ऐसे गुड की बातें देते हैं। अगर वो बच्चा उसको अटेंड कर लें तो फिर उसके लिए लैंग्वेज दुनिया की आसान लैंग्वेज बन जाएगी, चाइनीज लैंग्वेज है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समर उमर एंड यू आर वाचिंग कॉकटेल। आज हम बात करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इंग्लिश नहीं, अब बहुत सारी ज़बानें सिखाई जाती हैं, जिसमें जर्मन आ जाता है, जिसमें फ्रेंच आ जाती है, चाइनीज़ आ जाती है। लेकिन आज हम स्पेशली जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है इसको सीखना, क्योंकि मुझे पता चला है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में रहते हुए मिल सकती हैं, और उसके साथ आप ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं और चाइना भी जा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सारी बातें हम पूछेंगे अपने गेस्ट से, जो कि हैं चाइनीज इंस्ट्रक्टर कामरान साहब। आज हमसे बात करेंगे और वो हमें सारी डिटेल्स बताएंगे चाइनीज लैंग्वेज के बारे में, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, इवन के स्कूल में भी बच्चों को जो है वो इस लैंग्वेज के बारे में एजुकेट करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं कामरान। अस्सलाम वालेकुम। नी हाओ। वालेकुम अस्सलाम। नी हाओ। नी हाओ माँ। वखन खाओ शीशिए। ओह नाइस, इससे आगे मुझे नहीं आती। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप मुझे बताएं जी, फ्यूचर में चाइनीज का आप मुझे बताएं क्या स्कोप है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे बच्चों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ का जो स्कोप है आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे अभी तक लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से ये 15 में जब चाइना के जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान में इन हुए थे, पाकिस्तान में आए थे शी जिनपिंग, तो जब उन्होंने आके ये सी पैक के हवाले से जब सी पैक को जो भी एग्रीमेंट था इनका MOU साइन किए, उसके बाद फिर हमारी जो भी गवर्नमेंट आगे मूव करती रही, उन्होंने भी सी पैक को स्टार्ट किया। सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा बिगेस्ट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान चाइना के दरमियान। अगर ये प्रोजेक्ट हमारा अभी तक तो 10 इयर्स इसको हो चुके हैं, 10 साल से ये मनसूबा जारी है, काफ़ी इसके फेज भी तैयार हो चुके हैं और काफ़ी इसकी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर अवेल है। और अब तो हमारी जो फैसल मूवर्स जो कंपनीज हैं उन्होंने बसेस को भी चला दिया है। इस्लामाबाद टर्मिनल से चाइना बॉर्डर तक आप जा सकते हैं और विद चीपेस्ट यानी कि इसकी जो टिकट के साथ। तो ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ऐसा एक हमारे पास एक लाइन है जिसमें हमारे पास अबॉर्ड वन बेल्ट वन रोड के ऊपर भी उसको हम देखते हैं। तो ये ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे पाकिस्तान में जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाए तो इसमें हमारे पास पाकिस्तान के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर हमारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इधर लाहौर पाकिस्तान की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इसकी आ जाएंगी जॉब्स की कि हमें
हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को चाइना जाने की जरूरत नहीं भी होगी, हम इधर से रह के इसको हम उसको अटेंड कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है, आप इस जो भी जो बिजनेस में लोग हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई रोड आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें चाइना के साथ कर सकते हैं। और सब लोग जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो जब से हमारा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस आज़ाद हुआ है, उसके बाद चाइना आज़ाद हुआ, तब से हमारी ये दोस्ती चलती आ रही है। और चाइना हमें नहीं छोड़ता, हम चाइना को नहीं छोड़ते। तो ये तो बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज इनको चाहिए कि आने वाले दौर में हमारे पास जो चाइना है, ठीक है, हमें इसकी नीड है, हम लोगों को पाकिस्तान की नीड है। क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए 50 साल पीछे है, चाइना 50 साल आगे है हमसे, पाकिस्तान से। और चाइना में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी इसकी इतनी वेल है, पर चाइना के अंदर इतनी इसकी इकोनॉमी बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान का ऊपर आना चाइना का बगैर नामुमकिन है। तो चाइना ही है जो हमारी हेल्प करता है, और वो हेल्प करता भी जा रहा है। जब से CPEC स्टार्ट है, बहुत ही मिलियन में, जिनके अब बिलियन डॉलर्स में उसने अपनी जो भी अमाउंट लगा चुके हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक राहदारी बनाई जाए।